Hello students, so we have been talking about the pancreas, the testes and the adrenal gland in the previous lectures. So I hope you have gone through the previous lectures. So abhi aage chalte hain, we'll talk about the ovary. So जैसे कि we have mentioned testes as the heterocrine gland because it produces the sperm as well as the testosterone hormones. उसी तरीके से ovaries भी क्या है? It is a heterocrine. They are heterocrine. That means produce hormones. कौन से hormones? So that is progesterone and estrogen. Progesterone and estrogen and female gamete, that is the egg. ठीक है. So as the testes, the ovaries are heterocrine as well because they produce hormones as well as the gametes. Now the ovaries consist of two things. Ovarian follicle and stroma. क्या है? दो चीजें अवेलेबल है ओवरीज के पास, दैट इज ओवेरियन फॉलिकल्स एंड दी स्ट्रोमा. नाउ दिस ओवेरियन फॉलिकल्स, यहाँ पे दो स्टेजेस है. दिस आर द यंग ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है, एंड दे कंसिस्ट ऑफ द डेवलपिंग गैमेट, द एग, एंड देन देयर इज गोइंग टू बी रप्चरिंग. देयर इज गोइंग टू बी रप्चरिंग ऑफ द follicle and the egg is released out, and the egg is released out, and then there's a follicle which is without the egg. This is the follicle which is without the egg, and the follicle is going to degenerate slowly. This is what it happens. So we have young follicles, then we have the one through which the egg is released. This process of release of egg is known as ovulation. Okay, this is all taking place inside the stroma. Okay, stroma के अंदर ये सब काम हो रहा है. These are the follicles. तो ovulation में क्या लिखे? Release of matured egg is known as ovulation. That occurs after 14 days. 14 day पे होता है ये चीज. Okay, now this is a follicle. These are ovarian follicles. Okay, and then this one is going to be termed as Graafian follicle. So once the egg is released, from the follicle, what is going to happen is it is going to be converted into a structure known as corpus luteum. किसमें convert हो जाएगा? Corpus luteum में convert हो जाएगा. So we have Graafian follicle that leads to the release of the egg, and then it gets converted into the corpus luteum because the egg has been released. तो ये बाकी का जो structure है उसे क्या कहा जाता है? Corpus luteum कहा जाता है. अब यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये दोनों स्ट्रक्चर जैसे ओवेरियन फॉलिकल्स, ओके, बट इनका जो सिक्रीशन है वो डिफरेंट है. जैसे कि बिफोर द एग इज बिन रिलीज, एग का रिलीज हुआ मतलब ओव्यूलेशन हुआ, उसके पहले की अगर बात करें तो उसकी पहले ये जो फॉलिकल था इट इज सिक्रेटिंग एस्ट्रोजन. दिस फॉलिकल इज सिक्रेटिंग एस्ट्रोजन, बट वंस द ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस, एक बार ओव्यूलेशन हो गया तो ओव्यूलेशन के बाद ये जो स्ट्रक्चर है फॉलिकल जिसे कॉर्पस लूटियम कहा जाता है, ये क्या सिक्रीट करता है? तो ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन. किसको सिक्रीट कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीट कर रहा है. ठीक है.
तो है तो एक ही चीज स्टेजेस में, बट इनिशियली बिफोर ओव्यूलेशन देयर इज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड आफ्टर ओव्यूलेशन देयर इज सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है. नाउ आई होप दिस इज क्लियर. नाउ स्ट्रोमा का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ सिक्रीशन. ठीक है, सिक्रीशन तो फॉलिकल्स ही करने वाले. तो यहां पे लिख देते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स सिक्रीट एस्ट्रोजन. फॉलिकल secretes estrogen which helps in development of secondary sexual characters development of secondary sexual characters. ठीक है. फिर क्या होता है दिस एस्ट्रोजन, फिर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम. then occurs formation of corpus luteum through रप्चर ऑफ, कौन रप्चर होता है, ऑफ मैच्योर फॉलिकल. सो यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, नॉट इवोल्यूशन नहीं है, ओव्यूलेशन है. रप्चर ऑफ मैच्योर फॉलिकल एंड कॉर्पस लुटियम secretes progesterone. So यहाँ पे we have talked about estrogen, जो मैंने बताया कि it is helpful in development of the secondary sexual characters. When you talk about progesterone, progesterone is a very important hormone because it is a pregnancy hormone. कौन सा hormone है? Pregnancy hormone है. Progesterone is a pregnancy hormone as it prepares uterus for embryo. ठीक है, आपने पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन जो होता है ना, तो ब्लड कैपिलरीज का फॉर्मेशन, उसका मेंटेनेंस, ओके, दैट इज गोइंग टू बी टेकन केयर बाय द प्रोजेस्टेरॉन. तो यहाँ पे जो प्रिपरेशन होती है टू रिसीव द एग, है ना, टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग या फिर जाइगोट, दैट इज डन बाय द प्रोजेस्टेरॉन. सो इफ द लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन आर very low, so in that case the female won't be able to conceive a baby, है ना, बेबी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा बिकॉज द यूट्रस इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट द जाइगोट, क्योंकि देयर इज नो प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कैपिलरीज. डन, सिंपल एंड इजी. सो ओवरीज मैंने बता दिया हिट्रोक्राइन है, दो चीजें सिक्रेट हो रही है, एस्ट्रोजन जो इट प्रोवाइड्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम थ्रू द रप्चर ऑफ मैच्योर फॉलिकल सिक्रीट्स, ओके, एंड द कॉर्पस लुटियम सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. एम्ब्रियो, ठीक है. Okay, so we are done with all the glands that are present and the hormones that they are secreting and the functions the hormones are performing. Now we'll talk about the structures which are not glands, क्योंकि normally hormones का secretion gland से होता है, but when you talk about kidney, kidney is not a gland. When you talk about heart, heart is not a gland. When you talk about the digestive system is not a gland. But then too they have the ability to secrete certain hormones.
ठीक है. सो जो एक्चुअल ग्लैंड सिक्रीशन था वो मैंने आपको बता दिया. अभी टॉक अबाउट हार्मोन्स फ्रॉम नॉन ग्लैंड स्ट्रक्चर्स. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट द हार्मोन्स ऑफ किडनी और हार्मोन्स फ्रॉम किडनी. सो किडनी की बात करते हैं तो किडनी डील्स विद द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मेंटेनिंग द आयनिक इक्विलिब्रियम. ये सब आपको पता है. बट हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है क्या? तो यस, किडनी वाले चैप्टर में वी हैव टॉक्ड अबाउट द जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, JGA. लिखेंगे जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus. जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus की अगर बात करते हैं, it secretes two hormones. Secretes two hormones. First is renin. और रेनिन का इंपॉर्टेंस आपने पढ़ रखा है रास में. रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरॉन सिस्टम. और दूसरी जो चीज हार्मोन से क्रिएट किया जाता है, दैट इज इरिथ्रोपोइटिन. नाउ इरिथ्रोपोइटिन की अगर बात करते हैं, so this hormone is very important because it stimulates the synthesis of RBC. Stimulates synthesis of RBC in bone marrow. It stimulates the synthesis of RBC in bone marrow. अब बोन मैरो की अगर बात करते हैं तो बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं. स्टेम सेल्स हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस any type of cell, but in presence of erythropoietin they are mainly dedicated to produce RBC. ठीक है, यहां लिखेंगे बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स है are in presence of erythropoietin, the stem cells are dedicated to produce RBC. बिकॉज स्टेम सेल्स काफी सारी चीजें बना सकते हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ एरिथ्रोपोइटिन वो क्या करेंगे? सिर्फ आरबीसी का प्रोडक्शन करेंगे. ठीक है. एंड व्हेन डज द किडनी प्रोड्यूस और हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी? किडनी को कब जरूरत पड़ेगी कि वो आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करेगी? बिकॉज किडनी इट वर्क्स एज अ सेंसर एज वेल. व्हेन इट आइडेंटिफाइज दैट द बॉडी इज फेसिंग हाइपोक्सिया, लो ऑक्सीजन अमाउंट, erythropoietin secretion starts when kidney faces hypoxia. That is low oxygen amount. तो जैसे ही किडनी को पता चलेगा कि बॉडी में ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कम है, इट वुड स्टार्ट सिक्रेटिंग erythropoietin and erythropoietin would start producing RBCs and the RBC का नंबर बढ़ जाएगा. तो RBC जितना ऑक्सीजन होगा मैक्सिमम ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी को डिलीवर करने लग जाएंगे. ठीक है. सो दिस वर द हार्मोन्स फ्रॉम किडनी. किडनी में कौन सा पार्ट? JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus. आई होप आपको पता है कौन से
कहाँ पे आता है, क्योंकि इन द चैप्टर किडनी ओके अपन ने ये चीज को पढ़ रखा है. सो दो चीजें हैं, रेनिन एंड एरिथ्रोपोएटिन. तो stimulates the RBC in synthesis of RBC in bone marrow, and secondary stem cells are dedicated to produce RBC. Okay, now let's talk about the hormones of gastrointestinal tract, that is the digestive system. Hormones of GI भी बोल सकते हैं. Hormones from gastrointestinal tract or the GI tract. So we have, let's say there are 4 hormones being produced from the digestive system, from the gastrointestinal tract. The first is gastrin. Secretion देखिए gastrin का, so that is from the mucosa of stomach or the gastric gland of stomach. Mucosa of stomach or the gastric gland of stomach. ठीक है. अभी गैस्ट्रिन करता क्या है? तो गैस्ट्रिन स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस जो डाइजेशन में हेल्प करता है. 10th स्टैंडर्ड में आपने काफी सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़े, तो उनको सिक्रीट करने के लिए जो हार्मोन चाहिए दैट इज गैस्ट्रीन. ठीक है. 10th में आपने गैस्ट्रिन की नहीं बात करी थी, आपने सीधा हार्मोन्स बता दिए थे. पेप्सिन है, लाइपेज है, ये सब हार्मोन सब एंजाइम्स की बात करी थी. बट इन एंजाइम्स को सिक्रीट कराने के लिए क्या चाहिए? गैस्ट्रीन चाहिए. तो यहां लिख देते हैं, it stimulates secretion of gastric juice. It stimulates secretion of gastric juice. ठीक है. Second, CCK, that is cholecystokinin. Cholecystokinin, which is written as CCK. क्या कहा जाता है इसे? CCK कहा जाता है. Now it is secreted from the duodenal epithelium. Secreted from duodenal epithelium. Duodenal epithelium. ठीक है. It stimulates gall. क्या करता है ये cholecystokinin? तो it stimulates गॉल ब्लेडर टू रिलीज बाइल. आपको पता है गॉल ब्लेडर में बाइल स्टोर किया जाता है, तो उसका जो रिलीज है फ्रॉम द गॉल ब्लेडर दैट इज विल बी स्टिमुलेटेड बाय cholecystokinin. तो स्टिमुलेट्स गॉल ब्लेडर टू रिलीज बाइल. ठीक है. देन इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स, दो चीजें स्टिमुलेट हो रही है. Stimulates pancreas to release pancreatic juice. It stimulates pancreas to release pancreatic juice. ठीक है. तो pancreatic juice आपको पता है, बाइल भी आपको पता है. बाइल अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ. डाइजेशन में इट हेल्प्स इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट इज कन्वर्टिंग बिग फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स. ठीक है. सो cholecystokinin आ गया, pancreatic juice. So we're done with 2 of them. Let's talk about the third.
Okay, then we have the secretin. Okay, secretin की अगर बात करें, secreted by duodenal epithelium, जो अभी लिखा था, secreted by duodenal epithelium. ठीक है, क्या करता है? स्टिमुलेट्स पेनक्रियाज टू रिलीज बाइकार्बोनेट्स, स्टिमुलेट्स पेनक्रियाज टू रिलीज बाइकार्बोनेट्स. ठीक है, दैट secretin secreted by the duodenal epithelium. And what does it do? It stimulates the pancreas to release bicarbonates. ठीक है. Then what do we have? We have GIP, that is gastric inhibitory peptide. Fourth, this is all produced by the GI tract, the gastrointestinal tract, the digestive system. So we have the gastric inhibitory peptide. That is GIP. Okay, now GIP नाम से आपको पता चल रहा है gastric inhibitory peptide, that is it is inhibiting something. तो किसको inhibit करेगी? तो secretion of gastric juice. So it inhibits secretion of gastric juice. That means the process of digestion has been performed. Now there is no requirement of the gastric enzymes. तो उसको बंद करने का काम कौन करेगा? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड नाम का हार्मोन. ठीक है. Okay, so we're done with the hormones of the gastrointestinal tract. Now there is a hormone produced by the heart as well. So देखिए hormones from heart. So हार्ट में जो एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, दैट इज एटेरियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर. एटेरियल natriuretic factor. Now arterial natriuretic factor की अगर बात करते हैं तो it is secreted by the wall of arteria auricles. Secreted by the walls of atria when high blood pressure is detected. Secreted by the walls of arteria when high blood pressure is detected. ठीक है. और जो रास आपने पढ़ रखा था, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसको अपोज करता है, मतलब उसके अपोजिट काम करता है. तो इट अपोजेस रास. ठीक है. इट लोअर्स ब्लड Na लेवल,
lowers blood Na plus level, ठीक है, by excreting Na plus through urine, by excreting Na plus थ्रू यूरिन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो Na प्लस का लेवल है वो काफी कम हो जाएगा, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो अ वेसोडाइलेटर, इट ऑल्सो एक्सपांड्स ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स को अगर एक्सपांड कर रहा है तो वी हैव अ टर्म दैट इज वेसोडाइलेटर। A term that is vasodilator, ठीक है। सो दिस इज द हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट, और किस काम में आ रहा है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। अभी सब हार्मोन्स हो चुके हैं ना, ग्लैंड्स के हार्मोन्स हो गए, नॉन ग्लैंड स्ट्रक्चर्स के हार्मोन्स हो गए। नाउ हाउ डू दिस हार्मोन फंक्शन एक्चुअली, और हाउ डू दिस हार्मोन्स एक्ट ऑन द सेल? In short, let's talk about the hormone action. How hormones act on target cell, या फिर we can put it as mechanism of hormone action. Mechanism of hormone action, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन अगर देखें, ओके, सो हार्मोन्स दे आर टर्म्ड एज द मैसेंजर्स, दे आर द प्राइमरी मैसेंजर्स। हार्मोन्स की अगर बात करते हैं तो ये याद रखना है कि हार्मोन्स जो है दिस आर दी फर्स्ट और दी प्राइमरी मैसेंजर्स, ठीक है ना। हाउ डू दे, अच्छा, यहाँ पे वी हैव टू वैरायटीज ऑफ हार्मोन्स अवेलेबल। वी हैव लिपिड soluble, and because when we are talking about their action we should be knowing कि कितने टाइप के हार्मोन्स है, then only we would be able to understand the action. So we have the lipid soluble and water soluble. There is lipid soluble, there is water soluble, and the examples are lipid soluble के example अगर लिखे so they are iodothyronines. The examples are iodothyronines, ठीक है। And second is steroids. The second is steroids. अब आयोडोथायरोनिन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आई कैन पुट टू एग्जांपल्स, दैट इज थायरोक्सिन एंड T3। थायराइड ग्लैंड में आपने सुना होगा T3 के बारे में। स्टेरॉइड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आई कैन प्लेस कॉर्टिकॉइड्स एंड gonadal hormones and the gonadal hormones, ठीक है। सो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स की अगर बात करते हैं उसकी दो कैटेगरीज है, आयोडोथायरोनिन्स एंड स्टेरॉइड्स। और आयोडोथायरोनिन में अगर देखें सो देयर इज थायरोक्सिन एंड देयर इज T3, एंड स्टेरॉइड्स में देखें तो देयर इज कॉर्टिकॉइड्स एंड देयर इज gonadal hormones. वाटर soluble की अगर बात करते हैं तो वी हैव अ सिंगल कैटेगरी दैट इज अमाइंस। We have a single category that is amines. So amines में we can talk about epinephrine,
we can talk about epinephrine, ठीक है, and we can talk about peptide proteins. We can talk about epinephrine, we can talk about peptide protein based hormones like we have the इंसुलिन, फिर आ गया ग्रोथ हार्मोन, फिर आ गया सिक्रिटीन, then there is follicle stimulating hormone, and there is the LH. So these are all the amines, and these are the lipids. These are iodothyronines and steroids. So iodothyronines and steroids are lipid soluble, while water soluble में कौन आते हैं? Amines आते हैं. Okay, amines में देखें तो epinephrine and peptide protein based hormones like जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी. ठीक है. Now let's talk about the action mechanism of lipid soluble hormones. How do they act on the cell? Mechanism of lipid soluble hormones. So now lipid soluble मतलब they can pass through or they can dissolve or they can mix up with the lipids. और आपको ये पता होगा कि जो lipids होते हैं, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर स्ट्रक्चर पता हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बायलिपिड लेयर. तो ये यार खुद बायलिपिड लेयर से बना हुआ है. तो अगर कोई लिपिड सोल्यूबल हार्मोन होगा उसके लिए काफी इजी हो जाएगा टू पास थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल में होती है अगर बेसिक्स आपको पता हो तो. सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. एंड इट इज मेड अप ऑफ लिपिड लेयर, है ना. दो लिपिड लेयर है ऊपर और नीचे, तो वी कैन टर्म इट एज लिपिड बाइलेयर. नाउ फॉर अ लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, let's say if it's a steroid or if it's a iodothyronine, it can easily pass through the membrane. तो यहाँ लिख देते हैं. Let's show a steroidal hormone. A steroid. So steroid can easily pass through the plasma membrane and it has a receptor which is available inside the cell. ये सेल की मेम्ब्रेन है तो रिसेप्टर कहां पे अवेलेबल है? सेल के अंदर अवेलेबल है. सो द मोमेंट इट एंटर्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज गोइंग टू बाइंड विद द रिसेप्टर. इट इज गोइंग टू बाइंड विद द रिसेप्टर. ठीक है. सो लेट्स से इट वाज, दिस इज द स्टेरॉइड हार्मोन. सो वो आता है और यहां पे बाइंड हो जाता है. इट बाइंड्स विद द रिसेप्टर. ठीक है. दिस इज साइटोसोलिक रिसेप्टर. दिस इज अवेलेबल इनसाइड द सेल. साइटोसोलिक रिसेप्टर आपने सुना होगा. साइटोसोल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म. तो ये साइटोसोलिक रिसेप्टर है जिसने किससे बाइंड किया? स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन से बाइंड किया. अब ये कहां जाता है? सो दे एंटर इनसाइड द, लेट्स से दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल and we have the DNA. So this cytosolic receptor along with the hormone, it enters the nucleus
and it binds to the specific site available on the DNA. ये क्या करेगी, एक स्पेसिफिक साइट पे बाइंड कर, लेट्स से इट बाइंड समवेयर हियर, the steroid hormone and the cytosolic receptor, वो आके यहाँ पे डीएनए पे स्पेसिफिक साइट पे बाइंड करेंगे and they would initiate the process of what, protein synthesis. So this would lead to the formation of RNA. किसका फॉर्मेशन होगा, RNA का फॉर्मेशन होगा. So this is RNA. ओके, तो RNA का फॉर्मेशन होगा और फिर ये RNA बाहर जाएगा और ये सिंथेसाइज करेगा किसको, दिस वुड लीड टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. दिस वुड लीड टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. तो यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे बिकॉज ऑफ द स्टेरॉइडल हार्मोन द सेल्स आर नाउ रिस्पॉन्डिंग एंड दे आर प्रोड्यूसिंग एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन. ठीक है, सो दिस इज हाउ अ लिपिड सोल्यूबल हार्मोन एक्ट्स. फर्स्ट it enters the plasma membrane, easily enter हो जाता है because it's lipid soluble. ठीक है, second thing, it binds with the cytosolic receptor that is present inside the cytoplasm. It is a protein, देखो एक protein base होता है. ठीक है, and then the receptor and the steroidal hormone, they go inside the nucleus and they bind with the DNA at a specific site on the DNA and stimulate the DNA to produce RNA and then initiate the process of protein synthesis. ठीक है, सो आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर, आपको समझ में आ गया. डन. सो फर्स्ट, स्टेरॉइडल बेस्ड हार्मोन passes easily through the membrane because it's made up of lipid, binds to a cytosolic receptor. The cytosolic receptor and the hormone, they go to the DNA which is inside the nucleus and they stimulate the DNA for the production of RNA and the RNA leads to the formation of protein. यहाँ पे अगर मैं specifically लिखूं, so this is mRNA आप बोल सकते हो, messenger RNA. ठीक है, now let's talk about the water soluble hormones. So this was lipid soluble. अब water soluble hormones की बात करते हैं. अब जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन होता है वो लिपिड के थ्रू पास नहीं हो पाता, इट कैन नॉट पास टू द लिपिड बाइलेयर. सो लिपिड के अलावा देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ हार्मोन रिसेप्टर ऑन दी मेम्ब्रेन. जैसे फर्स्ट वाले केस में आपने देखा कि जो रिसेप्टर था वो कहां पे लोकेटेड था, सेल के अंदर लोकेटेड था, साइटोप्लाज्म में लोकेटेड था. बट यहाँ पे जो रिसेप्टर है ये लोकेटेड कहां पे है, ये लोकेटेड है मेम्ब्रेन पे ही. ठीक है, द रिसेप्टर इज लोकेटेड ऑन द मेम्ब्रेन इटसेल्फ. इनिशियल वाले में द रिसेप्टर वाज इनसाइड द सेल, यहाँ पे द रिसेप्टर इज लोकेटेड ऑन द मेम्ब्रेन. ठीक है, सो नाउ व्हाट हैपेंस, इस रिसेप्टर के साथ देयर इज आल्सो अ जी प्रोटीन. ओके, और जो जी प्रोटीन है वो बना है 3 कंपोनेंट से, दैट इज अल्फा, बीटा एंड डेल्टा एंड गामा. सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स. ठीक है, सो ऑल टुगेदर इट्स जी प्रोटीन. इसको क्या कहा जाता है, जी प्रोटीन कहा जाता है. और इसके 3 कंपोनेंट्स है, दैट इज अल्फा, बीटा and gamma. ठीक है, and what do we have here, this is the hormone receptor, this is the hormone receptor. ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, जैसे फर्स्ट केस में आपने देखा कि जो हार्मोन था डायरेक्टली अंदर आ रहा था मेम्ब्रेन को पास करके और रिसेप्टर अंदर प्रेजेंट था. बट याले केस में व्हेन यू टॉक अबाउट वाटर सॉल्युबल hormones, the receptor is present on the membrane itself. So क्या लिखेंगे, hormone, first step is hormone binds to protein receptor. किससे बाइंड होता है,
प्रोटीन रिसेप्टर से बाइंड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जी प्रोटीन इज एक्टिवेटेड। यहां पे कौन सा हार्मोन? इट शुड बी वाटर सोल्यूबल हार्मोन, ठीक है। सो जब जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है तो इट एक्टिवेट्स एंजाइम्स लाइक adenyl cyclase enzyme is adenyl cyclase enzyme is activated, ठीक है। तो यहां पर देखिए हार्मोन बाइंड्स टू प्रोटीन रिसेप्टर एंड activates G protein. The G protein activates okay, and this adenyl cyclase enzyme जो है ये किससे रिएक्ट करता है? ये हेल्प करता है एटीपी को कन्वर्ट करने में इनटू CAMP साइक्लिक प्लस फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये दो चीजों में इसको कन्वर्ट करता है, किसको? एटीपी को, विद द हेल्प ऑफ एडिनाइल साइक्लेस एंजाइम। अब ये जो है दिस इज अ सेकेंडरी मैसेंजर, ओके, दिस इज अ सेकेंडरी मैसेंजर। मेरे को पूरा रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया आपको कि जो हार्मोन है वो बाइंड करेगा प्रोटीन रिसेप्टर से, और प्रोटीन रिसेप्टर किसको एक्टिवेट करेगा? जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। जी प्रोटीन इस रिसेप्टर के साथ अटैच्ड है। देखो जी प्रोटीन जब एक्टिवेट होगा तो वो एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जो एटीपी का कन्वर्जन करेगा इनटू साइक्लिक एएमपी एंड पीपीआई। नाउ इसके बाद जो आएगा उसको कंटिन्यू करते हैं। तो जो सीएमपी बना है CMP, ये क्या करता है? इट्स अ सेकेंडरी मैसेंजर। पहली बात तो आपको याद रखनी है, प्राइमरी मैसेंजर हार्मोन था, ये कौन है? ये सेकेंडरी मैसेंजर है, ठीक है। और ये क्या करता है? तो ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज को इनटू एक्टिव protein kinase. The cyclic AMP converts protein kinase which was inactive into active protein kinase, and this protein kinase it activates enzymes cells to produce enzymes, okay, या फिर it creates a cell response, क्योंकि मैंने यहां पे क्या लिखा? एक्टिवेट सेल्स टू प्रोड्यूस एंजाइम, दैट इज अ रिस्पॉन्स क्रिएटेड बाय द सेल, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो यहां पे आप देख रहे हो इट्स लाइक इट इज फॉर्मिंग अ कास्केड, एक चेन रिएक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पहले क्या हुआ? पहले यहाँ पे बाइंडिंग हुई, ओके, वाटर सोल्युबल हार्मोन्स की, जिनने एक्टिवेट किया जी प्रोटीन्स को। जी प्रोटीन ने एक्टिवेट किया किसको? इट एक्टिवेटेड एन एंजाइम एडिनाइल साइक्लेस। एडिनाइल साइक्लेस ने एटीपी को कन्वर्ट किया सीएमपी में, और फिर सीएमपी ने क्या किया? प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट किया, ओके, एक्टिव प्रोटीन काइनेज बनाया, और एक्टिव प्रोटीन काइनेज क्या कर रहा है? सेल रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो वी कैन टर्म इट एज द कास्केड। Okay, this is what? This is a cascade mechanism, chain reaction. It is a chain reaction. ठीक है, ओके। तो यहां पे मैंने एक नया टर्म बोला, सेकेंडरी मैसेंजर्स। हार्मोन्स को अपन तो प्राइमरी मैसेंजर्स बोलते हैं, बट दिस आर सेकेंडरी मैसेंजर्स।
Okay, done. So we are clear about the mechanism of water soluble hormones कि water soluble hormones directly enter नहीं कर पाते हैं in the cell. ठीक है, they create a cascade mechanism. And when you talk about lipid soluble hormones, they can easily pass through the membrane, bind to a receptor present in the cytoplasm, and then the receptor and the hormone, they enter the nucleus and they bind to the specific site on the DNA that initiates the process of protein synthesis. ठीक है, and यहाँ पे क्या है, first यहाँ पे bind हो रहे हैं and they are not able to enter in, the hormones are not able to enter in, they are just binding to the receptor which is on the membrane. ठीक है, and which activates the G protein, then the whole process आपको पता है. So this is a very important because काफी बार बोर्ड में ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं कि हार्मोन एक्शन क्या है. तो आई होप आपको ये काफी सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया है. बुक में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, आपको थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकती है, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू एक्सप्लेन इट. ठीक है, बट स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज डू लेट मी नो. नाउ यहां पे लेट्स टॉक अबाउट सेकेंडरी मैसेंजर्स एज वेल. मैं आपको नाम बता देता हूं सेकेंडरी मैसेंजर्स के. प्राइमरी मैसेंजर हमेशा हार्मोन्स रहेंगे. सेकेंडरी मैसेंजर्स का अगर लिस्ट ले लें, सो वी हैव CAMP, देन वी हैव CGMP, देन वी हैव CA2+, देन वी हैव PIP2. सो PIP2 की अगर बात करते हैं, दैट इज फॉस्फाटिडाइल आइनोसिटॉल. फॉस्फाटिडाइल आयोनोसिटॉल बाइफॉस्फेट. ठीक है, देन वी हैव IP3. सो IP3 की बात करें, दैट इज आयोनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट DG, ये सब मैं नाम लिख रहा हूं किसके, सेकेंडरी मैसेंजर्स के नाम लिख रहा हूं. सो इट इज डायसाइल ग्लाइसरॉल. दिस इज डायसाइल ग्लाइसरॉल. ठीक है, ओके. Insulin acts via tyrosine kinase and activates इंसुलिन जो होता है एक्स वाया टायरोसिन काइनेस, है ना. इंसुलिन इट्स अ हार्मोन, इट्स अ प्राइमरी हार्मोन. ठीक है, और प्राइमरी मैसेंजर. बट इंसुलिन किसके थ्रू काम करता है, टायरोसिन काइनेस के थ्रू काम करता है. टायरोसिन काइनेस कौन है, तो ये हो गया सेकेंडरी मैसेंजर. सेकेंडरी मैसेंजर, ओके, एंड दिस इज प्राइमरी मैसेंजर. ठीक है, देन ये सेकेंडरी मैसेंजर्स हो गए. अब एक और चीज देख लेते हैं, विल टॉक अबाउट एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स. एंटागोनिस्टिक हार्मोन. सो एंटागोनिस्टिक हार्मोन की बात करें तो यहां पे क्या होता है, जैसे लेट्स टेक अबाउट हार्ट रेट इंक्रीज बाय एड्रेनालिन. एड्रेनालिन इंक्रीजेस हार्ट रेट. तो उसी के साथ इसका अपोजिट एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट काम कौन करता है, एसिटाइल कोलिन. तो एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, इट डिक्रीजेस हार्ट रेट. तो ये ठीक है, ये क्या करेगा, इट डिक्रीजेस हार्ट रेट.
ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स हो गए। अब ये जो एड्रेनालिन है ये प्राइमरी हार्मोन, प्राइमरी मैसेंजर है, तो इसका जो सेकेंडरी मैसेंजर है ये भी अपन मेंशन कर देते हैं यहां पे, दैट इज CAMP। CAMP इज द सेकेंडरी मैसेंजर फॉर एड्रेनालिन। एंड एसिटाइलकोलिन की अगर बात करते हैं तो इसका जो सेकेंडरी मैसेंजर होता है दैट इज CGMP। ठीक है, सो दिस आर प्राइमरी हार्मोन्स, प्राइमरी मैसेंजर्स, एंड दिस आर द सेकेंडरी मैसेंजर्स। ठीक है, देन वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट synergistic hormones। synergistic hormones की अगर बात करते हैं, this hormones they produce a cumulative effect, altogether they are going to work on some particular thing। यहां लिखेंगे cumulative effect is created when you talk about synergistic hormones। तो यहां पे एग्जांपल ले सकते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन ऑन मेमरी ग्लैंड, द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये कितने हॉर्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, 4 हॉर्मोन्स मिलके दे आर स्टिमुलेटिंग द मेमरी ग्लैंड। तो वी कैन पुट देम इन द कैटेगरी ऑफ synergistic hormones which are producing a cumulative effect, all together they are working on the memory gland। ठीक है, so we are done with the chapter। We have discussed almost everything regarding the chapter from the for the board level as well as for the NEET level। ठीक है, तो काफी सारे points मैंने discuss किए, but still if you are confused with any of the points do let me know। So we are done with the chapter। In the next lecture we start with the new chapter। ठीक है, thank you so much।